let's start. So let me present my screen. Wait. So before moving to problems, first we'll quickly revise what we have discussed so far on the incidence of tax and residential status. So first we discussed about Indian income. So Indian income, if any of these three conditions satisfied, we considered this as an Indian income. So what was the condition? That if income is received or deemed to be received in India during the previous year and at the same time it accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India during the previous year, हमने deemed receipts भी discuss कर लिया है and हमने income accrue or arises in India के भी सारे concepts we have already discussed. अगर इन दोनों में से एक भी अगर होता है previous year में, then also it is called as an Indian income. So these were the three main conditions. Next was foreign income. So foreign income में क्या था? दोनों conditions should be satisfied. So there was an and. It means income is also received outside India and also it accrue or arises in India. और इन दोनों में आपका deemed concept भी है. ठीक है? It does means that the income is not deemed to be received in India and it also does not deem to accrue or arise in India. So this is your foreign income. Then next, the incidence of different taxpayers. So in case of Indian income, it is taxable irrespective of the residential status. So Indian income is taxable and foreign income, it is taxable in case of resident and ordinary resident, and non-resident के case में it is not taxable, but in case of resident but not ordinarily resident, उनके cases में it is taxable only if two conditions are satisfied, and the conditions are, first is that if it is a business income and business is controlled wholly or partly from India, और दूसरा क्या था, if it is a income from profession which is set up in India. तो इन्हीं दोनों cases में ये NOR में होगी taxable, otherwise it is not taxable. तो ये आपके individuals and HUF का हो गया. Next, for any other taxpayer apart from individual and HUF, Indian income as usual it is taxable irrespective of status. Foreign income is taxable in case of resident and not taxable in case of non-resident. Okay. Then we have discussed about receipt versus remittance. Receipt means the first occasion when the recipient has got the control of the money, and remittance is when you have got the money and then you are making any kind of remittance or the transmission of that amount to another place. So if you are doing so, then it will not be considered as a receipt. So receipt हमेशा first occasion ही consider की जाती है, उसके बाद कुछ भी remittance हो वो आपके नहीं consider होते हैं. नेक्स्ट हमने कैश वर्सेस काइंड सीखा था कि इट डजंट मीन दैट द इनकम शुड ऑलवेज रिसीव्ड इन कैश. आपकी काइंड इनकम्स इज आल्सो इंक्लूडेड, लाइक आपके फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, आपकी कार, आपके मील कूपन्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन योर इनकम. देन रिसीट वर्सेस अक्रूवल हमने सीखा था. रिसीट व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द अमाउंट एंड अक्रूवल व्हेन यू गॉट द राइट टू रिसीव द अमाउंट. ठीक है, सो ये कंसेप्ट भी डिस्कस्ड. And then we discussed about the actual receipt versus deemed receipt. And deemed receipt में क्या थे? There were 5 points, जिसमें आपका एक तो PF में excess contribution था employer का, then interest अगर ज्यादा मिलेगा 9.5% से, transfer balance था, contribution by the central government and TDS. These were the 5 main points which are stated in the act that which will be considered as deemed receipt. Then हमने डिस्कस किया था what is income deemed to accrue or arise in India. So उसमें हम we have discussed 7 cases: income from business connection, income through or from any property, asset or source of income in India, income through the, ये हमने सारे डिस्कस किए थे. Then income through the transfer of capital asset situated in India. कोई भी अगर capital asset के transfer पे means sale पे अगर कोई भी capital gain हो रहा है. Income under the head salaries, salary payable by the government to a citizen of India,
dividends paid by an Indian company, and income by way of interest, royalty, and technical fees. So these all are the concepts that we have discussed in the previous sessions. Now we'll move to the problems. Okay. So okay. So this is your first problem, that you have to calculate the total income of Mr. Y, who is a citizen of India. This is for the assessment year 2021. Okay. So these are the four cases. First, I will discuss these four cases. The first is capital gain on sale of property situated in Delhi, amount received in Dubai. ठीक है, अभी आई एम जस्ट रीडिंग आउट द स्टेटमेंट्स, यू डू इट साइमल्टेनियसली, देन आई विल चेक इन द चैट बॉक्स. Income from a business in Mumbai, collected from Dubai and received and accrued in India. The third one is income from business in Dubai, controlled from Delhi, and amount received in Dubai. Interest from shares in Indian company received in Dubai. So these are the four cases. यहाँ पे राइट डाउन योर नेचर ऑफ इनकम एंड देन टेल मी आरओआर, एनओआर एंड एनआर के केस में कितना अमाउंट आपका उसकी टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगा. फर्स्ट का आंसर आ गया मेरे पास. Indian income tax 52 lakhs 50,500. अच्छा, यू हैव एडेड. जितेश किसका ऐड किया है? आरओआर का. वैसे अभी एक और पार्ट है इसका क्वेश्चन का. दीज आर जस्ट द फोर सब पार्ट्स. इसके बाद जब नेक्स्ट आएगा ना, उसके बाद वी विल डू द टोटल. जल्दी करो बच्चे. अभी सबका आपने इंडियन ही लिखा है, मतलब सबका आंसर फर्स्ट लिखा है लोगों ने. चलो मैं डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, अमाउंट रिसीव्ड इन दुबई. सो अमाउंट तो आपका दुबई में रिसीव्ड हुआ है, बट आपकी प्रॉपर्टी is in Delhi, which is in India, तो we say that it is deemed to accrue or arise in India. तो ये आपकी इंडियन इनकम हो गई, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल द थ्री केसेस. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, controlled from Dubai, received and accrued in India. Now, since the income is received and accrued in India, so it is an Indian income and it is taxable in all the three cases. Next is income from a business in Dubai, controlled from Delhi, and amount is received in Dubai.
अब इसमें देखो आपका अमाउंट आपका रिसीव का कहाँ पे हुआ है, दुबई में, सो बाहर हुआ है तो इट इज फॉरेन इनकम। बट क्या कह रहा है, बिजनेस जो है, बिजनेस इनकम इज अ बिजनेस इनकम, क्योंकि बिजनेस से आ रही है, वो दुबई में सिचुएटेड है, बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। तो इस केस में ये आपका फॉरेन इनकम हो जाए, फॉरेन इनकम तो है बट आपका वो जो केसेस थे ना, जो आपके दो केसेस थे, वो इसमें एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो इसलिए ये एनओआर के केस में तो टैक्सेबल होगा, बट एनआर के केस में इट इज नॉन टैक्सेबल। समझ में आ गया? दिस इज अ बिजनेस इनकम विच इज रिसीव्ड इन दुबई। इंडिया में नहीं रिसीव्ड हुई है तो हमें फॉरेन इनकम मानेंगे, क्योंकि डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के भी कंसेप्ट में क्लियर नहीं है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, दिस इज अ बिजनेस इनकम। ठीक है, सो बिजनेस इनकम है विच इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज फॉरेन इनकम। सो फॉरेन इनकम आरओआर में तो टैक्सेबल होती है, एनआर में नहीं होती, और एनओआर के केसेस में ओनली इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इसलिए इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर। The last one is interest from shares in in company received in Dubai. Now the shares are in Indian company. तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर कुछ भी सिचुएटेड है आपकी इंडिया में, तो वो आपकी deemed to accrue or arise in India मानी जाएगी. So this is Indian income and it is taxable in all the three cases. So I hope these parts are clear to everyone. आई थिंक सही था, बस यहीं पे होगा अगर किसी को डाउट होगा तो, विच आई हैव ऑलरेडी क्लियर। चलो, नाउ दिस इज द नेक्स्ट टू सब पार्ट्स, ये करो उसके बाद वी लैड देम। So first one is royalty received from Delhi government paid to him in Dubai for a project situated in Dubai. And the next one is technical fees received from Delhi government paid to him in Dubai for a project situated in Delhi. Foreign income taxable, taxable, non-taxable. Indian, yes, yes, yes. हम लोगों ने कंसेप्ट किया था ना, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, उसमें एक कंसेप्ट नहीं था कि एनी रॉयल्टी, टेक्निकल फी और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इंडिया, एक कंसेप्ट था ना कि वो हमेशा डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो चाहे कहीं पे भी प्रोजेक्ट सिचुएटेड हो, चाहे कोई भी उसको मैनेज कर रहा हो, चाहे कहीं पे भी अमाउंट रिसीव्ड हो, if any these royalty, technical or interest fee is being paid by the government, it is considered as deemed to accrue or arise in India. मैं दिखा देती हूँ आपको, ये पॉइंट कहाँ पे था, ये रहा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था ये आपका, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आपका ये पॉइंट आता है कि अगर कहीं से भी रिसीव्ड होगा उसको, अगर कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एंड इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड टू रिसीव और अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद वी जस्ट हैव टू डू द टोटल। सो आरओआर का पूरा टोटल करोगे, एनओआर के कॉलम का टोटल करोगे, एनआर के कॉलम का करोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस टोटल इनकम।
I hope so far this question is clear to everyone. In case of doubts, why will Indian government pay for any foreign project? बच्चे, अगर इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन एनी काइंड ऑफ अ राइट फ्रॉम देम, अगर कोई राइट, अगर उन्होंने कुछ इन्वेंट किया हुआ है और उसको वो यूज कर रही है, अगर इंडियन गवर्नमेंट उससे रिगार्डिंग अगर वो रॉयल्टी पे कर रही है उन लोगों को, या अगर कुछ बोरो किया है अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट ने वहां से और उस पर वो इंटरेस्ट अगर पे कर रही है तो ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Any more doubts? Indian income is always taxable for NR also. Yes, बच्चे, it is taxable for everyone irrespective of residential status. Indian income का concept ये कहता है कि अगर इंडिया में income receive होती है या accrue होती है, deem to receive होती है, deem to accrue होती है, तो it is always an Indian income. ठीक है. अगर इंडिया में अगर कुछ हो रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट के केस में भी आपकी चार्जेबल होगी. ठीक है, चलो, आई एम मूविंग टू सेकंड प्रॉब्लम देन. This is the second problem. Calculate the total income of Mr. X, citizen of London. ठीक है. So this is the first one. Salary from a UK company received in London for rendering services in London. Next one is salary from a UK company received in London for rendering services in Delhi. Third one is business income received in London. Business is situated in London and is partly controlled from London and partly from India. So first foreign, no in all. फर्स्ट इनकम जो है आपकी, इट इज रिसीव्ड इन लंदन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन लंदन. तो सैलरी का कंसेप्ट क्या था हमारे डीम टू अक्रू और अराइज में, कि सैलरी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. सो इसमें जो 2 लाख रुपए हैं ये आपके लंदन में रिसीव हुए हैं. सो दिस इज फॉरेन इनकम एंड फॉरेन इनकम is always taxable for ROR but नॉन टैक्सेबल फॉर NOR एंड NR. यहाँ पे ना सर्विसेज भी आपकी लंदन में रेंडर हुई है. ठीक है. अगर सर्विसेज आपकी दिल्ली में होती जैसे इस वाले एग्जांपल में, तो ये आपकी इंडियन इनकम बन जाती बिकॉज इट इज नाउ डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. सो भले ही यूके कंपनी की है, भले इट इज रिसीव्ड इन लंदन, बट सिंस इट इज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इट इज इंडियन इनकम. The third one is your business income received in London. Business is situated in London and is partly controlled from London and partly from India. तो आपकी foreign income हो गई. Foreign income is full taxable in case of ROR, non-taxable in case of NR, but in case of NOR there are 2 conditions और इसकी first condition satisfied हो रही है. क्योंकि first condition क्या कहती है कि first it is a business income, तो ये business income ही है, and it is wholly or partly controlled from India. So in this case it is partly. तो case आपका 1 satisfied हो रहा है, तो NOR के केस में it will be taxable. बच्चे, yes बच्चे.
मैम ये क्वेश्चन 1 में रेजिडेंट में यस क्यों आया, क्योंकि वो तो सिटीजन ऑफ लंदन है ना। बच्चे आपका देखो फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ना कि आपका टैक्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉट ऑन सिटीजनशिप। चाहे कहीं का भी सिटीजन हो, आपको रेजिडेंशियल के बेसिस पे करना है। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आपके 3 इसमें ऑलरेडी गिवन है कि इन केस जो आपका मिस्टर एक्स है इज रेजिडेंट, इन केस मिस्टर एक्स इज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इन केस मिस्टर एक्स इज नॉन रेजिडेंट। अच्छा सो ओके अगर मैम। भले ही वो सिटीजन हो लंदन का, हो सकता है वो पिछले 10-20 साल से इंडिया में रह रहा हो और उसको हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट कह रहे हैं। ठीक है, ओके तो मैम। ऑलवेज रिमेंबर योर फॉरेन इनकम इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्योंकि आप लोग वही कंफ्यूज हो रहे हो कि फॉरेन इनकम तीनों में टैक्सेबल नहीं होगी, बट फॉरेन इनकम आरओआर के केस में हमेशा होती है, एनओआर के केस में 2 केसेस में होती है, एनआर में कभी भी नहीं होती। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द नेक्स्ट। So business income received in London, but later half of the amount is remitted to Delhi. Business is situated in London and is partly controlled from London and partly from Dubai. Next is rental income from a property situated in India and received in London. And the third one is birthday gift received in India from his friends and relatives. So first is foreign, yes, no, no. Foreign, yes, no, no. Next one is Indian, yes, yes, yes. Foreign, yes, no, no. Last का भी लिखो. Last Indian, yes, yes, yes. ठीक है, so let's discuss. जो business income है, it is received in London, okay? But later half of the amount is remitted to Delhi. हमने रिसीट वर्सेस रेमिटेंस में किया था, फर्स्ट ओकेशन की ही इनकम को कंसिडर किया जाता है, किसी भी रेमिटेंस को कंसिडर नहीं होता। सो फर्स्ट ओकेशन पे कहाँ रिसीव्ड हुई है? लंदन। ठीक है, सो बाहर रिसीव्ड हुई है, सो इट इज फॉरेन इनकम। अब बिजनेस इज सिचुएटेड इन लंदन एंड इज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन एंड पार्टली फ्रॉम दुबई। तो ये दोनों के दोनों आपकी फॉरेन कंट्रीज है, सो इट इज आउटसाइड इंडिया। सो इन दिस केस इट इज फॉरेन इनकम, और रेजिडेंट और आरओआर के केस में इट विल बी टैक्सेबल, इन दोनों के केस में इट इज नॉन टैक्सेबल, सिंस जो दोनों आपके केसेस थे वो आपके सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, सो इट इज नॉट टैक्सेबल। Next is rental income from a property situated in Delhi and received in London. So bhale it is received in London, but since the property is in Delhi, so we'll put this circumstances as a condition of deemed to accrue or arise in India. So ये आपकी इंडियन इनकम हो गई, और ये तीनों के केसेस में फिर टैक्सेबल है आपके। देन बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो आपको रिसीव कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है, तो इट इज इंडियन इनकम एंड इट इज टैक्सेबल। ठीक है, नाउ यू कैन ऐड द कॉलम्स. This should be your total in case of ROR, in case of NOR, and this is NR. ठीक है, I hope this is clear. सही है, सबका ऑलमोस्ट सही है ये. Any doubts then write बच्चे, otherwise I'll move to next question.
So this is the third question, that you have to calculate the total income of Mr. Z for assessment year 2021. So this is the first case. Royalty is received outside India for a patent registered in in Dubai from a foreign company, and the foreign company has used the patent for manufacturing purposes in India. ये दोनों केसेस थोड़े अच्छे हैं, ध्यान से पढ़ो इन्हें. टेक योर टाइम एंड देन राइट. Next one is dividend from a UK company received outside India. Mr. Z holds more than 50% shares in the UK company. Business of the company is partly controlled from India. So first is Indian, yes, yes, yes. Foreign, yes, no, no. और भी लिखो बच्चे. So first is foreign, yes, no, no. Foreign, yes, no, no. Foreign, yes, no, no. ये सब आप फर्स्ट का बता रहे हो. फॉरेन, इंडियन, यस यस यस. तो चलो मैं फर्स्ट डिस्कस करती हूँ पहले. आपकी जो रॉयल्टी है इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. ठीक है. सो आउटसाइड कंसेप्ट है, तो अभी हम फॉरेन इनकम ही कंसिडर कर रहे हैं. फॉर अ पेटेंट रजिस्टर्ड इन दुबई फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी से ही आया है. And the foreign company has used the patent for manufacturing purposes in India. तो ये आपका जो केस है ना, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस वाला, उस केस में दिस इज द थर्ड जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट if the royalty is received from a non-resident. In this case it is from a non-resident foreign company, है ना. और उसमें आपका केस क्या कह रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, वेट, ये received third case. ठीक है, let me just this case. Interest, royalty or technical fees received from a non-resident is taxable in the hands of recipient when, ये second point, payment of royalty technical fees pertains to a business profession carried on by the payer in India or earning any income in India. तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी इनकम तो क्या मानी जाएगी, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. और जैसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी, आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंडियन इनकम, विच इज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस. तो इस केस में फॉरेन कंपनी किस लिए पे कर रही है, नॉन रेजिडेंट है ना, किस लिए पे कर रही है वो, सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन इंडिया. सो बिजनेस, आप जो पेमेंट हो रही है, इट इज पर्टेन टू अ बिजनेस, राइट. सो इस केस में ये आपकी इंडियन इनकम कंसिडर होगी. दिस इज योर इंडियन इनकम. So it is taxable in all the three cases. It is not foreign income. ठीक है. So हमेशा you have to think about all the conditions of deemed to accrue or arise in India. जैसे रॉयल्टी आ गया, इसका मतलब इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस की सारी कंडीशंस you have to revise. ठीक है. हमेशा देखना है कौन पे कर रहा है, रेजिडेंट पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, किस लिए पे कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फॉरेन, यस नो, yes yes no किया है. It is not yes yes no. Why? Because just read it carefully. Dividend from a UK company
received outside India. Mr. Z holds more than 50% shares in the UK company. Business of the company is partly controlled from India. ठीक है, अब हमारे पास जो रेसिपिएंट है मिस्टर जी, उसके पास क्या आया है, उसने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया था बाहर की कंपनी में, और जो बाहर की कंपनी के जिस शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया था, उसने बाहर की कंपनी में के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, और कंपनी क्या करती थी, उसका बिजनेस इज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. ये आपकी उसको जो इनकम मिल रही है, दिस इज डिविडेंड इनकम, नॉट बिजनेस इनकम, क्योंकि उसको डिविडेंड्स मिल रहे हैं उस कंपनी से. और आपके जो एनओआर के केस में दो कंडीशंस है ना, इट इज रिगार्डिंग टू द बिजनेस इनकम. ठीक है, फॉर इन रिलेशन टू द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, या फिर इट इज पर्टेन्स टू अ प्रोफेशन विच इज सेट अप इन इंडिया. ठीक है, इस केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये एनओआर के केस में नॉन टैक्सेबल है बच्चे. ठीक है, ये सिर्फ आपकी फॉरेन इनकम रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल है, नॉट इन केस ऑफ एनओआर, सिंस दिस इज डिविडेंड इनकम. If it would have been a business income, then it will be taxable in case of NOR. ठीक है, I hope this is clear. Any doubts? Any doubts, बच्चे? Ma'am, but if he hold more than 50% of shares, won't be his business. बच्चे ऐसे कहाँ होता है, आपकी जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, आप उसके ओनर बन जाते हो, बट आपका ओनर और मैनेजमेंट का डिफरेंस पड़ा हुआ है ना आपने, कि ओनर्स आर जस्ट द वन हु आर ओनिंग इट. जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस. तो आपका कोई बिजनेस थोड़ी, आपने तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. मैम, डिविडेंड इज नॉन टैक्सेबल. कहाँ लिखा तो है, जो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, उसमें लिखा हुआ है डीम डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल. कराया तो है मैंने आपको. बच्चे इसमें आपको हमेशा देखने की इनकम क्या आई है आपको. इट इज नॉट बिजनेस इनकम, दिस इज डिविडेंड इनकम. उसको डिविडेंड्स मिले हैं, उसको बिजनेस की इनकम थोड़ी मिली है. वो कोई बिजनेस थोड़ी ओन करता है जो उसकी इनकम आई है. उसको क्या मिला है, डिविडेंड्स. डिविडेंड्स पता है ना आपको कंसेप्ट क्या होता है, कि जब शेयर्स होते हैं तो हर साल डिविडेंड प्रपोज करते हैं कंपनी वाले, फिर उनको डिविडेंड्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स को. तो ये आपकी डिविडेंड इनकम है, ये आपकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही है. गितेश, डिविडेंड वाला कंसेप्ट मैंने बच्चे डिस्कस किया हुआ है. ये रहा डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी. और वैसे फॉरेन कंपनी इट्स ऑलवेज नाउ टैक्सेबल इन इंडिया. पहले नहीं था ये, बट नाउ इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. ये इंडियन इनकम होता है. और जो आप लोग केस फॉरेन इनकम का कह रहे हो, ये रहा, इफ इट इज अ बिजनेस इनकम. आपके केस में इट इज डिविडेंड. तो डिविडेंड्स कहाँ आपके आते हैं, एनी काइंड ऑफ अदर फॉरेन इनकम, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड सो ऑन. ये सारे अलग है, यहाँ पे बिजनेस इनकम होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज दिस, लॉस फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन दुबई कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल. Next is rent of a commercial property situated in Nepal received in Bhutan. And next one is income from agricultural operations in Nepal received in Nepal and later on remitted to UK for investment purposes. However, no income is generated during the previous year out of this investment. Agricultural operations are controlled from India by team of professionals. So first का क्या आंसर है, इट इज फॉरेन. यस, नो, नो. आदित्य, बच्चे याद रखो, फॉरेन इनकम हो चाहे लॉस हो, हमेशा बच्चे रेजिडेंट के केस में यस ही आएगा. कभी नो मत करना. फॉरेन में तीनों के केस में नो, नो, नो.
सो फर्स्ट इज क्लियर, इट इज अ फॉरेन लॉस. ठीक है, फॉरेन लॉस आपके आरओआर के केस में डिडक्ट हो जाएगा. जैसे इनकम्स ऐड होती है, लॉस आपके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एनओआर और एनआर के केस में इट इज निल. The next one is rent of a commercial property situated in Nepal received in Bhutan. बच्चे टैक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, बोला तो मैंने. आपका जो लॉस है वो सब्ट्रैक्ट होगा. लॉस पे तो उसको फायदा हो रहा है ना, उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी कम हो रही है. Second one saying foreign, yes, no, no, perfect. It is foreign income which is taxable only in case of ROR. For the other NOR, NR, it is non-taxable. Now the next third वाले का बताओ. Income from agricultural operations in Nepal received in Nepal, later on remitted to UK for investment purposes. However, no income is generated during the previous year out of this investment. Agricultural operations are controlled from India by a team of professionals. It is foreign, yes, yes, no. Foreign. Third one. Achal and Aditya, it is perfect. क्योंकि आपकी इनकम इज फॉरेन इनकम, क्योंकि आपकी रिसीव्ड भी बाहर हुई है और लेटर ऑन रिमिटेड भी बाहर ही हुई है. वैसे अगर होती तो भी इट वाज नॉट मच ऑफ अ इम्पोर्टेंस फॉर अस, क्योंकि रेमिटेंस भी डोंट कंसिडर. इसमें हम एनओआर के केस में इसलिए इसको कर रहे हैं बिकॉज एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशंस थे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स. तो ये आपकी प्रोफेशनल इनकम है, और प्रोफेशनल इनकम आपकी हमेशा एनओआर के केस में टैक्सेबल होती है इफ प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया. तो ये हमारे इंडिया में ही सेटअप है, क्योंकि इंडिया में ही टीम ऑफ प्रोफेशनल्स आर मैनेजिंग दिस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. तो आपके फॉरेन इनकम की सेकंड कंडीशन जो है ना एनओआर के केस में, इट इज बीइंग सैटिस्फाइड. सो इन दिस केस it is taxable for ROR and NOR but non taxable for your NR, क्योंकि foreign income NR के केस में कभी taxable होती ही नहीं. So any doubts? इस वाले केस में ना ऐसे लिखा हुआ है कि नो इनकम इज जनरेटेड. सपोज अगर यहाँ पे कोई अमाउंट भी जनरेटेड होता ना और इसमें कोई इंक्लूसिव होता अमाउंट, जैसे यहाँ पे होता कि 1 लाख इज जनरेटेड विच इज ऑलरेडी एडेड इनटू दिस अकाउंट, तो हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग खाली वो इनकम देख रहे हैं जो प्रोफेशनल से इंडिया में उन्होंने बैठ के जो मैनेज किया और जितनी उनको इनकम मिली है प्रोफेशनल इनकम, वो टैक्सेबल होती है. ठीक है, जो रेमिटेंस के बाद उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो नहीं होती. शुड आई मूव बच्चे? फर्स्ट केस में रिफंड नहीं है बच्चे. ये आपकी जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो अपने सारे हेड्स को प्लस माइनस प्लस करते हो ना, तो वहां पे कहीं लॉस होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो आपका जो जीटीसी है ना वो कम हो जाएगा. आपका इस 1 लाख आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. उसके बाद आप एज पर टैक्स स्लैब रेट्स आप चार्ज करोगे टैक्स, तो आपकी लॉस आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है. रिफंड नहीं होता ये. रिफंड होता है जब टैक्स पे कर दिया और उस पर रिफंड आता है. अभी तो हम खाली टोटल इनकम को क्लब कर रहे हैं. So this is next. Income from house property situated in Mumbai. Rent is received in Dubai, but on the next day it is remitted to India. The next one is pension received in Dubai. Service was rendered in India with a foreign company. Indian, yes, yes, yes. Perfect. For the second part,
सेकेंड पार्ट का क्या होगा? इंडियन, yes, yes, yes. Yes, it is Indian income because the services are rendered in India. और pension is a component of your salary. Salary में ही होता है आपका pension भी. तो अगर कोई भी kind of pension income भी आ रही है for the services rendered in India, so it is always considered as deemed to accrue or arise in India. So this is Indian income. ठीक है, भले वो कहीं पे भी received हो. Similarly, house property, since it is situated in Mumbai, चाहे rent कहीं पे भी receive हो और चाहे उसका owner कोई भी हो, it is always considered as an Indian income क्योंकि it is situated in India. So when you add them up, so this is your gross total income in all the three cases. So these are the questions for today. I hope this is clear. In case of any doubts, please write, बच्चे. मंडे से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे. And I'll try in the weekends if I can just give you some questions for practice. Please share this PDF. Yes, definitely I'll share. सबका टोटल अलग कैसे आया बच्चे? क्योंकि कोई इनकम आपके आरओआर में टैक्स, कोई आपके एनओआर में टैक्सेबल है, आरओआर में नहीं है, या फिर आपके देखो यहाँ पे देखोगे ना, Ma'am, your voice is breaking.